हाय गाइस। सो तक तो आप सबको पता लग ही गया होगा। नया बजट आ चुका है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026। अब जानने की बात यह है कि क्या ये बजट एक्चुअली में टैक्स पेयर्स के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि हम सबको पता है कि बहुत टाइम से, इनफैक्ट पिछले 6 महीने से ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इज लेविंग अ लॉट ऑफ टैक्सेस और फैसिलिटीज हमें अप टू द मार्क नहीं मिल रही। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज इम्पेरेटिव कि इंडियन गवर्नमेंट एक्चुअली कोई एक्शन ले और टैक्स पेयर्स को रिलीफ दे, बिकॉज इन इंडिया राइट नाउ आप सबको पता है एग्रीकल्चर इनकम पे वैसे भी टैक्स नहीं लगता, एंड वी आर एग्रीकल्चर लेड इकोनॉमी। तो मोर देन 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वैसे भी टैक्स नहीं देती ऑन इनकम, and salaried are somewhere around 1.5 to 2% of the overall population। अब ये 1.5 से 2% लोग अगर 98% लोगों के लिए डायरेक्ट टैक्सेस देने लग जाएं, तो that's a big burden on these 2% of people, carrying the weight of 98% other people, because other than agriculture, we all know, like businessmen, they have a lot of ways to evade taxes. They have, they are very smart, they are very intelligent, and they have support of CAs and all of those people, जिसके कारण they can actually save a lot of tax, right? But in case of salaried person, it becomes very tough. तो इट वाज एक्चुअली इम्पोर्टेंट कि गवर्नमेंट सामने आए और अपने स्लैब्स में चेंज करे और कुछ बहुत बड़ा रिलीफ दे। सो जैसे जैसे हम इस प्रेजेंटेशन में आगे जाएंगे, आई विल शो यू इफ दिस एक्चुअली इज अ बिग चेंज, वन। एंड सेकंड, अब इस चेंज के होने के बाद, फर्स्टली ऑफ कोर्स कि क्या ये रिलीफ है। सेकंड, अगर ये रिलीफ है तो क्या ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, लाइक what exactly is going to change? So moving forward, if I take you to, before we actually discuss कि क्या changes आए, let me just give you a bit of brief about this budget. तो ये eighth consecutive budget presentation थी by Nirmala Sitharaman, एंड यस ऑफ कोर्स, लाइक मुझे ये उम्मीद थी कि ये सबसे बड़ा बजट होगा, बट इट डिडंट क्रॉस दैट लेजेंडरी मार्क। सो अभी तक बाय वर्ड्स स्टिल मनमोहन सिंह जी का बजट which was presented in 1991 still is the biggest budget, followed by, of course, the biggest budget by words is Manmohan Singh ji's, as he shared back in 1991। by time, it is Nirmala Sitharaman's only, जो उन्होंने 2020 में present किया था। So, these are some of the facts which I wanted to discuss with you. And then, coming to focus area of this budget, so, चार main segments पे focus किया गया है, which is गरीब, youth, अन्नदाता, किसान, and नारी। So, of course, we'll cover the other three, Garib, Annadata, and Nari. But for now, let's focus on youth, because सबसे ज़्यादा outrage और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा eyeballs भी youth की ही थी इस बजट पे। So, see, this is the change. Now, on the left side, आप अगर देखो, तो I have put, new regime for financial year 2026. On the right side, it's old regime. Again, old regime doesn't mean the old regime, which was before the recent announcements were made. Old regime here is the regime which was followed last year. So, आप अगर इसमें देखोगे, so basic exemption limit has been expanded from 3 to 4, right? So this is the change which has come. Then, again, basic exemption limit 1 lakh से बढ़ गई है, which is a big change definitely. Then standard deduction, it remains the same. This is applicable for salaried people only, so you must also be aware about this. Then tax rebate limit, अब यहाँ पे सबसे बड़ा change आया है. So this is where, like earlier it was 7 lakhs and now it is 12 lakhs. So for example, अगर आज आपकी salary is, below 12 lakhs, say 1199, say 1198, whatever, I mean, आपका tax zero है, you don't need to pay anything. But again,
बिकॉज ये रिबेट है, यू नीड टू फाइल योर आईटीआर, सो आपका यू हैव टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड दैट्स वेयर you will get rebate, so effectively your tax rate becomes zero. But again, ये नहीं समझना है कि हमें आईटीआर नहीं भरनी है, आईटीआर भरने के except for of course taking rebate or you know giving balancing all the equation. Other than that, also you need to file ITR as a responsible citizen of this country. Plus, once you file ITRs, आपको बहुत ज़्यादा loans और बहुत सारी facilities होती हैं जो मिलती हैं. So it's good. It's a healthy practice. आपको वो continue रखना है, but again, you should understand कि आपका tax zero है. Now, for salaried people, it's just not 12 lakhs. ये 12 लाख 75,000 तक पहुंच जाता है, बिकॉज 75,000 की रिबेट भी है. सो इफेक्टिवली एक सैलरीड पर्सन की सैलरी अगर 12,75,000 से कम है, ठीक है, तो उसको जीरो टैक्स देना है. बट अदर देन सैलरीड पर्सन, मे बी प्रोप्राइटर्स हो गए या HUF वाले लोग हो गए, उनके लिए 12 लाख है. सो दैट्स द डिफरेंस. अर्लियर इट वाज 7 लाख, सो इट्स अ बिग जंप. 5 लाख एक साल में इज अ बिग जंप, एंड आई विल से इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. मैं आगे बताऊंगा आपको क्यों क्यों ये इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बट सो फार यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस इज द चेंज. अब आते हैं इनकम टैक्स स्लैब रेट. अब यहाँ पे आप एक चीज देखो. सो सी, जैसे मैंने बोला कि 3 लाख की ओल्ड रिजीम में थी, नए रिजीम में इट्स 4 लाख, राइट. उसके बाद आप ये देखो ब्रैकेट्स भी बढ़ाई हैं. सो अर्लियर 3 से 7 lakhs थी, नाउ इट्स 4 to 8 lakhs, 7 to 10 lakhs, 8 to 12 lakhs. सो ये तो चलो एक नॉर्मल चीज, ऑफ कोर्स 10 से 12 में पहले 15% लग रहा था, 12 से 16 में लग रहा है. बट जो सबसे बड़ा चेंज है वो अबव 15 lakhs इट वॉज फ्लैट 30%. पर अब एक नया स्लैब ऐड हुआ है विच इज 20 से 24 lakhs के बीच में, वहां पे 25% लग रहा है. एंड नाउ इट इज 30% फॉर पीपल हु आर अर्निंग अबव 24 lakhs, विच इज अगेन मेरे हिसाब से, अगर आप इफ यू टेक माई सजेशन, देन इंडिया में I don't think so this 30 lakh bracket should be there, because see, हम already direct indirect taxes there. Now people will say कि देखो foreign की countries में भी तो direct tax है, indirect tax है, but see वो facilities जो वहाँ पे मिल रही हैं, clean air हो गया, health care. Again, I understand health care India में सस्ता है, but still you see in foreign countries your government takes care of your healthcare services, your government takes care of your education services. Then a lot of facilities, for example businessman के लिए, for example I'll give you a real example of one of my friends. तो he lost job. He is in New Zealand और उनकी जॉब चली गई थी आज से 2 साल पहले, अराउंड कोविड टाइम पे. तो जब उनकी जॉब चली गई, तो उनके पास एज सच कोई पैसे नहीं थे टू सस्टेन हिज लिविंग. बट देन गवर्नमेंट सपोर्टेड हिम. सो ऐसी फैसिलिटीज अब इंडिया में नहीं मिलती. सो फॉर एग्जांपल हम में से किसी की भगवान ना करे चले जाए जॉब, तो विल इंडियन गवर्नमेंट एक्चुअली पे फॉर योर बिल्स? इट विल नॉट. ठीक है. तो उन कंट्रीज में आपको टैक्स देने का सेंस बनता है, बिकॉज यू आर गेटिंग सच फैसिलिटीज. बट इन कंट्रीज लाइक इंडिया, आपको वो फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं. सो इसीलिए आई प्रेफर, और आई सजेस्ट, और आई थिंक इन कमिंग ईयर्स, अभी तो चलो ये स्लैब बढ़ा है, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर बिल्डिंग अप. यूएस में यू मस्ट बी अवेयर कि उन्होंने एक चीज को पुश कर दिया है कि विल ट्रम्प इज पुशिंग फॉर नो डायरेक्ट टैक्स रिजीम, कि हम टैरिफ से कलेक्ट करेंगे. बट अगेन यूएस कैन डू दैट बिकॉज इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी. इसीलिए बोला जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट शुड एक्चुअली फोकस अ लॉट, हमारी इकोनॉमी को एग्रीकल्चर इकोनॉमी से शिफ्ट करें, सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी से शिफ्ट करें टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज वो दोनों चीजें सॉल्व करेगी जो सबसे बड़ा इशू है इंडिया का. वन इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड द अदर पार्ट इज दिस टैक्सेशन थिंग. क्योंकि मैन्युफैक्चरर से आप टैरिफ इकट्ठा करके वट एवर लॉस यू विल हैव by reduction or elimination of direct taxes, you can cover it up from manufacturing. but जब तक वो push नहीं होगा, so that's why I say कि इंडियन गवर्नमेंट को एक्चुअली पॉलिसी चेंजेस करने पड़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग को पुश करना पड़ेगा, एंड इवेंचुअली दिस स्लैब मस्ट एक्चुअली बी एलिमिनेटेड. देखो, मेरे हिसाब से तो पूरा इनकम टैक्स ही एलिमिनेट होना चाहिए, बट फॉर नाउ आई थिंक दैट विल नॉट हैपन. अभी तो आने वाले टाइम में यू विल सी, आई कैन गारंटी, आई कैन बेट ऑन दिस, that the maximum income tax slab is going to come down to 25%. शायद इससे नीचे ना जाए, अगर बहुत नीचे चला गया तो 20%, पर ये पूरा अबॉलिश नहीं होगा till the time Indian economy actually manufacturing hub बनती है. ठीक है. So we have to wait for that, but this is what my judgment says. Now, these are the changes. I hope आप लोग इन चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे. Now, going to the next slide. So देखो,
अब हमने बात कर ली क्या चेंज हुआ, हमने बात कर ली क्या हो सकता है। नाउ आई टेल यू व्हाई दिस वाज नीडेड एंड हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट इंडिया। सो देखो, सबसे पहले वी ऑल नो, हम लोग इस रेस में पड़े रहते हैं कि देखो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो आई से देखो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे पास 130 प्लस 140 प्लस इनफैक्ट 140 करोड़ प्लस की पॉपुलेशन है, एंड कंसिडरिंग द नंबर ऑफ ब्रेन्स इंडिया इज हैविंग, करेक्ट? तो the GDP we are having is nowhere close to what it should actually be. आप चाइना को देखो, और when stop comparing India with countries like Pakistan, Bangladesh, भाई they are not matched to India. You start comparing yourself to country like China, to countries like US, चलो उन पे भी नहीं compare करना, to countries like Vietnam and Philippines. Look at the way these countries are growing, and why is it so? Because वहां पे you have to understand first GDP क्या है. So GDP is a combination of, this is consumption, which is private consumption. मैं, आप, हम सब लोग जो खर्चा करते हैं उसको प्राइवेट कंजम्पशन का पार्ट होता है वो. Then it comes investment. This is investment by businesses, business tycoons, Ambanis, Adanis. And unfortunately अभी I can reference that because they are big players, but I want I wish कि इंडिया में हम लोग ऐसे ही अंबानीज अडानीज के साथ शर्मास, Guptas, all of these, we start putting all of them together, but that will happen once government actually में push करना शुरू करेगी towards shaping the Indian economy towards the manufacturing economy. So this is investment by businesses. Then comes the third component, which is government expenditure. जो government road बना रही है, भारतमाला project for example, जो हमारे नितिन गडकरी जी काम कर रहे हैं, and I'm really impressed with his work, to be very honest. So government expenditure is part of GDP, and then it becomes net exports, which is exports minus imports. Right now unfortunately India import ज्यादा करता है, export करता है, export कम करता है, but again वो भी सॉर्ट हो जाएगा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की तरफ जाओगे, बिकॉज वंस यू गो टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी वी विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सपोर्ट. अभी तो सिर्फ एग्रीकल्चर ही करते हो ना ज्यादातर, और सर्विसेज करते हो, आईटी सर्विसेज, बट विद टाइम इफ यू पुश टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग आपको अनएम्प्लॉयमेंट का भी कंपोनेंट सॉल्व होगा. आपके पास लाइक बहुत इंपॉर्टेंट टैरिफ कलेक्शन बढ़ेगी जिससे आप डायरेक्ट टैक्सेशन घटा सकते हो. डायरेक्ट टैक्सेशन घटाओगे तो क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होगा, जिससे ये ऊपर जाएगा प्राइवेट कंजम्पशन, और बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स ऊपर जाएंगे, बिकॉज जब बिजनेसेस के पास पैसा हाथ में ज्यादा होगा, लिक्विड कैश होगा, इन हैंड होगा, या इन इंडिविजुअल्स के पास होगा, हम जाएंगे, हम गाड़ियां खरीदेंगे, हम मोबाइल्स खरीदेंगे. इट विल नॉट बी, अभी भी हम खरीद रहे हैं, बट दैट्स मोर ऑन ईएमआईज. वी ऑल नो इंडिया में आज आप 10 लोग अगर कोई नया सामान लेते हैं, उनमें से आई थिंक 8 या 9 ईएमआईज पे लेते हैं. बट देन वो 8 या 9 जो ईएमआईज पे लेते हैं, ठीक है, उसके कारण क्या हो रहा है कि 20 को सामान लेना है, उनमें से 10 ले लेते हैं क्योंकि वो ईएमआई पे ले पाते हैं. जो बाकी 10 हैं वो नहीं ले पा रहे बिकॉज उनके पास लिक्विड कैश ही नहीं है, वो टैक्स दे पा रहे हैं, उनके पास सेविंग्स ही नहीं हो पा रही. बट जब ये टैक्स कम होगा तो उनके हाथों में खर्चा ज्यादा होगा, तो जहां पे आज 10 लोग ले रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, वहां पे 20 लोग खर्चा करेंगे. चलो आज 10 में से 8 ईएमआई ले रहे हैं, हो सकता है उसके बाद 20 में से 18 ईएमआई लें, दैट्स नॉट एन इशू, पर वो लेंगे बिकॉज दे विल हैव द कैपेसिटी टू बाय ऑन ईएमआई. हो सकता है ईएमआई की रेशियो भी कम हो जाए विद टाइम, राइट, बिकॉज लोगों के पास पैसा आ जाएगा. वैसे ही बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स है, सिर्फ गवर्नमेंट अगर इन्वेस्ट करेगी, ठीक है, तो क्या होगा जो आज की डेट में हो रहा है. यू हैव टू अंडरस्टैंड इंडिया की जीडीपी रिसेंट टाइम्स में सिर्फ इसलिए बढ़ी है क्योंकि गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड थिंग्स लाइक दैट. बट जब तक ये चीज कम नहीं होगी, जब तक ये चीज पे ही इंडियन इकोनॉमी सस्टेन करेगी, एंड कंजम्पशन एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स, दिस कैन बी फ्रॉम इंडियन कंपनीज, दिस कैन बी फ्रॉम फॉरेन कंपनीज विच इज एफडीआईज. ओके, जब तक ये दोनों कंपोनेंट्स नहीं बढ़ेंगे तब तक हो सकता है इस चीज के ऊपर, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कभी भी एक इकोनॉमी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती. बिकॉज इफ गॉड फॉरबिड अगर इन इन्वेस्टमेंट्स के अच्छे रिटर्न्स आने बंद हो जाएं, या इनके रिटर्न्स नेगेटिव में चले जाएं, लोगों के पास ऑलरेडी पैसा नहीं है, तो आप एक ऐसे क्राइसिस को देखेंगे इकोनॉमी के जो शायद हमें नहीं देखना चाहिए, राइट. एंड देन अगेन आई टोल्ड यू, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जब आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ पुश करोगे तो ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाओगे चीजें, यू विल हैव मोर क्वांटिटी टू एक्सपोर्ट. आज चाइना चाइना क्यों है, बिकॉज इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, वो ये चीजें एक्सपोर्ट करता है. तो दिस इज वेयर आई थिंक ये जो बजट है, इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, because along with the government investments, government ने इस चीज को पुश किया है. Government is pushing towards increasing consumption, private consumption and business investments by allowing people to have more money in hand. Now, before I leave, of course, please do subscribe to our channel. So
ये एक नया चैनल है ऑफ कोर्स। यहाँ पे हम बहुत सारे यू नो दीज गवर्नमेंट पॉलिसीज, अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स, बिकॉज आई सी इंडिया में बहुत ज्यादा लोगों को पसंद है गवर्नमेंट जॉब्स को देखना, पढ़ना, बट आई थिंक एक ऐसा पोर्टल होना चाहिए जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आती रहे या गवर्नमेंट पॉलिसीज की अपडेट आती रहे, ताकि पीपल आर एक्चुअली इन्फॉर्म्ड अबाउट दीज थिंग्स। एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर मैं किसी की भी लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज ला पाऊँ। So I think if you really like the idea of this channel, तो आप please subscribe करो, and while you subscribe please also comment। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि व्हाट्स दी मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इंडिया की डिफरेंस क्या है इस टाइम। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। जब आप इस चीज के बारे में देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में क्या डिफरेंस, एंड देन compare it with China के exports and imports में क्या difference है. So in the comment section below, you can certainly give that number. I'll give a like to whoever comments in this comment section to actually help people understand कि हाँ मतलब जो भी सही values होंगी या जो भी सही लोग होंगे उनको मैं उनके comments को मैं like करूँगा. So definitely I look forward to you subscribing this channel, and then ऐसे ही आने वाले time में हम और भी videos cover करेंगे. Hopefully you like this video. Thank you.